Is my screen visible? Yes, sir. Good morning, sir. Okay. Good morning. So we have now in the last lecture. So please go through them because they are very important. And let's discuss few more things on this propositional logic. Okay. So you have seen that we use this propositional logic for representing simple facts, right? It is raining. So who will be focusing in this statement? That is raining. Okay. Then it is sunny. So sunny is where we are mainly focusing on this statement. Then it is windy. So windy. So from every statement, you may find out that where we are focusing on. So if it is raining, then it is not sunny. So this statement we can write like raining implies negation of sunny. And about these symbols, about these things, we have already discussed in the last lecture. But it is very clear from the statement that if it is raining, means raining implies not sunny. So raining implies negation of sunny. Okay. Then some normal forms are there in positional logic, frequent examination. And what are they? CNF and DNF. कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड डिजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. सो कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या है? आपका जितने भी ये क्लॉज रहेगा, ठीक है, इस क्लॉज के बीच जो सिंबल होगा वो एन, और आप बोल सकते हो कंजंक्शन होगा. ये दिख रहा है आपको? ये पहला वाला क्लॉज क्या है? पी डिजंक्शन क्यू डिजंक्शन आर. सेकेंड वाला क्लॉज यहाँ क्या है? पी डिजंक्शन क्यू. एंड थर्ड वाला पी डिजंक्शन आर. बट एक चीज नोटिस करो आप लोग कि ये सारे क्लोज को जिससे हम जोड़ के रखे हैं वो क्या है? आपका कंजंक्शन, राइट? सो यू विल सी दैट these different clauses are conjunctions. Okay, joined with the help of conjunction. So we can say that conjunctive normal form is a conjunction of disjunction. क्योंकि इस क्लॉज के अंदर जो सिंबल्स आपको दिखाई दे रहा है वो डिजंक्शन है, और इन सारे क्लॉज को हम कंजंक्शन के जरिए जोड़ के रखे हैं, राइट? सो I hope this conjunctive normal form is clear. We can write like that. It is a conjunction of disjunction. Okay. In the last lecture, I have asked one question, but many of you have not attended that question. Don't do it. Don't just keep the question. Go for it and answer it. Okay. It is not. I'm not just talking about this casual class or like that. Okay. These questions might help you to catch competitive exams. That's why my own question. Don't keep the questions. कि हम मैं सेमिस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, आपको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ. ये बात मत समझो, ये खुद इसको अपना इंटरेस्ट देके अटेंड करो, क्योंकि यही चीज आप जब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे पढ़ने के लिए, यू हैव टू पे ए लॉट ऑफ मनी टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट्स. नाउ यू कैन गेट form. I hope you all get it. So these are the different clauses. So that's it. Then similarly मैंने क्या कहा था? DNF और disjunctive normal form. इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ कंजंक्शन है तो यहाँ डिजंक्शन आ जाएगा, और इन सब में कंजंक्शन आ जाएगा. ठीक है. सो इट इज अ डिजंक्शन ऑफ कंजंक्शन. ये दिख रहा है आपको कंजंक्शन के जैसे क्लॉजेस है, और इसके बीच क्या सिंबल है आपका? डिजंक्शन. So this is DNF. Now, what is the procedure to state change or convert a statement into CNF? कभी कभी आपको क्या होगा, एग्जाम में दे सकते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट को CNF मतलब कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में बदलना है. मिस क्लॉज के बीच क्या होना चाहिए? होना चाहिए कैसे? एंड बाय कंडीशनल यूजिंग फॉर्मूलास. और वो फॉर्मूला मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि P implies and implied by Q, और P ये जो आपका डबल इम्प्लीकेशन Q, इसको कैसे लिख सकता हूँ? P implies Q conjunction Q implies P. इन दोनों का सेम है. सेम है मतलब आप जब ये दो दे आर इक्विवेलेंट. सो P implies and implied by Q is equal to P implies Q conjunction Q implies P.
सिमिलरली ये सेकेंड वाला तो एकदम याद ही रख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। P implies Q is equal to what? Negation of P or disjunction Q, राइट? ये दोनों पूरा याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ एंड रिड्यूस नॉट सिंबल सो एज टू ब्रिंग निगेशंस बिफोर द एटम्स। अब ऐसा अगर क्या होगा कि निगेशन ऑफ P और Q, इसको मैं अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ कैसे लिख सकता हूँ, निगेशन ऑफ P conjunction negation of Q. Similarly, opposite case, negation of P conjunction Q is equal to negation of P disjunction negation of Q. Right? Then you have other laws like distributive laws. Okay, बहुत सारे लॉस मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में, वो सारे लॉस भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट ये जो दो स्टेप है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक ठीक है, सो लेट्स टेक वन प्रैक्टिकल एग्जांपल। हमें ये स्टेटमेंट दिया गया है और इस स्टेटमेंट को आपको कन्वर्ट करना है CNF फॉर्म में, कंजंक्टिव नंबर फॉर्म में। क्या दिया हुआ है, P implies Q implies R। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग P implies Q को मैं कैसे लिख सकता हूँ, निगेशन ऑफ P डिजंक्शन Q। कैन आई राइट लाइक दैट? ऑफ कोर्स आई कैन राइट लाइक दैट। फिर से आप इसको X मान लो, X मान लिया मतलब क्या होगा, X implies R, और X implies R को मैं कैसे लिख सकता हूँ, निगेशन ऑफ X डिजंक्शन R। तो X क्या था, निगेशन ऑफ P डिजंक्शन Q था X, निगेशन ऑफ P डिजंक्शन Q मतलब मैं X मान के चला था, ठीक है। तो ये पुट कर दो डिजंक्शन R। अब इसको क्या कर दोगे, तोड़ दो, क्योंकि ये डी मॉर्गन्स लॉ के जरिए आप इजीली कर सकते हो। ये निगेशन ऑफ P डिजंक्शन Q, इसके आगे निगेशन है, तो क्या होगा, निगेशन ऑफ निगेशन P, दैट इज P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q इन और R, ठीक है। आप एस पार्ट आप ये कौन सा लॉ है आप जानते हो, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मैंने पढ़ाया था। तो P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q कंजंक्शन R डिजंक्शन R, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, P डिजंक्शन R कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q डिजंक्शन ऑफ R। अब जो लास्ट में हमें मिला ये चीज आप अच्छे से नोटिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस फॉर्म में है, CNF, ठीक है, क्योंकि इनके बीच क्या सिंबल है, कंजंक्शन, और यहाँ क्लॉज में क्या है आपका, disjunction, right? Is this numerical example clear to everyone? Please respond. Yes, sir. Very good. ठीक है, तो ये समझ में आ गया है, तो इसको एक बार फिर से घर में भी करके देखना, ठीक है। Then resolution in propositional logic क्या होता है, prove by refutation or contradiction, use for theorem proving or rules of inference। अभी तक मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि इन्फेरेंस क्या होता है, पुराने चीजों से फाइंड आउट करना, सिंपल अर्थ में, ठीक है। या तो हम अगर टेक्निकली बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, कि you have been given some old facts and from those facts you try to infer something new, that is inference। Say we have to prove proposition A. Assume A to be false, that is negation of A. Continue solving the algorithm starting from negation of A. If you get a contradiction that is false, at the end it means that your initial assumption is wrong, that is negation of A is false। So negation of A is false मतलब क्या है, A must be true। इसका मतलब क्या है, जब आपको प्रूव करना है कि ये जो प्रोपोजिशन है A ये सही है मतलब ये एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या है, A is true। अब ये प्रूव तब में हम उल्टा मान लेंगे, मतलब क्या है, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। ट्रू नहीं है मतलब क्या होगा, ए का ट्रू नहीं है तो मतलब निगेशन ऑफ ए, राइट। अब ये निगेशन ए को मैं थ्योरम, जो थ्योरम हमें दिया गया है और एल्गोरिथम जो दिया गया है उसमें पुट करूंगा। अब उसमें ए के बदले निगेशन ऑफ ए पुट करने से अगर आपको अल्टीमेटली रिजल्ट फॉल्स मिल जाए, मतलब कंट्राडिक्शन मिल जाए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मैंने मान के चला था वो गलत है, और मैं क्या मान के चला था, निगेशन ऑफ ए मान के चला था, ये गलत है। तो निगेशन ऑफ ए इज फॉल्स मतलब क्या होगा, उसका अपोजिट, दैट इज ए इज ट्रू। आ गया समझ में? इसी को हम बोलते हैं प्रूफ बाय रिफ्यूटेशन और कंट्राडिक्शन। ओके, so that is what I am talking about for this do-minded। So if disjunction of literature is caused, you already got it. How it works? If it is hot,
then it is humid. If it is humid, then it will rain. It is hot. तो इससे क्या मैं प्रूव कर सकता हूँ? अगर ये हॉट है, ठीक है, ह्यूमिड है, और ह्यूमिड में है मतलब क्या होगा? रेन है. तो अगर हॉट दिया है तो इट विल रेन. नाउ हाउ यू गो फॉर प्रूविंग इट? Let's denote this statement with proposition H, O and R. H मतलब मैंने मान के चला है it is humid. O मतलब मान के चला हूँ say it is hot. And R मतलब suppose it is raining or it will rain. ठीक है? Is humid. Hot के लिए क्या लिखा था? O. तो O implies what? H. Right? O implies H. अब O implies H को मैं कैसे लिख सकता हूँ? वो फॉर्मूला को याद करो जो मैंने पढ़ाया था अभी. ठीक है? लास्ट क्लास में भी बताया था. P implies Q is equal to negation of P disjunction Q. बस पुट कर दो. तो O implies H को मैं लिख सकता हूँ negation of O disjunction H. Right? If it is humid, then it will rain. So H implies R. So negation of H. हुआ है O. Right? तो ये जो है ये तीनों एक साथ हो रहा है. देखो डायरेक्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो निगेशन ऑफ O एंड O. ठीक है, कैंसिल आउट. H एंड निगेशन ऑफ H कैंसिल आउट. तो क्या बाकी रह जाएगा आपके पास? R. और R stands for what? It will rain. So we have inferred that it will rain. Now you tell me whether this example, numerical example, is clear to you or not. Clear, sir. Okay, very good, Nadet. So let us assume that it will not rain. अब मैं उल्टा मान के चलूंगा. जैसे मैंने कहा था ना, प्रूफ बाय रिफ्यूटेशन में क्या करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन में क्या करते हैं, हम उल्टा मान के चलते हैं. तो इट विल नॉट रेन, इसका मतलब क्या है? निगेशन ऑफ आर. अब जब निगेशन ऑफ आर एंड निगेशन ऑफ एच यूनियन आर, इसमें क्या होगा? इन दोनों को हटा के हमें मिल जाएगा निगेशन ऑफ एच. और दिया है उसको, उसके साथ भी मिलाओ. निगेशन ऑफ एच, निगेशन ऑफ ओ यूनियन एच. एच एच कैंसिल हो गया आपका. क्या हो गया? निगेशन ऑफ ओ. अब निगेशन ऑफ ओ एंड ओ, ठीक है, ये दोनों कैंसिल होके क्या मिल जाए? मतलब इट इज नॉट हॉट. जो एच मतलब क्या था? इट इज हॉट. आप निगेशन ऑफ ओ एंड ओ, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा. और कैंसिल हो जाएगा मतलब एम्प्टी क्लॉज मिल जाएगा आपको, मतलब एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा. तो कॉन्ट्रडिक्शन कैसे मिला हमें? जब मैं मान के चला था कि इट विल नॉट रेन, मतलब निगेशन ऑफ आर मान के चला था, तो मुझे एम्प्टी क्लॉज मिला. तो निगेशन ऑफ आर सही नहीं है, इज नॉट ट्रू. So negation, if negation of R is false, then what is true? So that's how we prove this thing with the help of proof by refutation or contradiction. I hope this is also clear to you. Yes, sir. So that's it. So using prepositional logic, theorem proving is decidable, but it cannot represent objects and quantification. और ये जो ऑब्जेक्ट क्वांटिफिकेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता प्रीपोजिशनल लॉजिक, इसीलिए हम और एक लॉजिक के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट लॉजिक. सो क्वेश्चन में कम दैट व्हाई वी गो फॉर प्रेडिकेट लॉजिक व्हेन वी ऑलरेडी हैव प्रीपोजिशनल लॉजिक? बिकॉज़ यू नो दैट प्रीपोजिशनल लॉजिक कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स एंड क्वांटिफिकेशन. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रेडिकेट लॉजिक. So इसका benefit क्या है? It can represent objects and quantification, and but theorem proving is semi-decidable. Now let's come to this simple facts. Proposition: Socrates is a man. Plato is a man. Fail to capture relationship between Socrates and man. We do not get any information about the objects involved. As for example, I ask you, who is a man? Then you cannot get the answer from this given proposition. ये दोनों दिया हुआ है तो आपको क्या होगा? आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि हु इज मैन. ठीक है, मैन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आपको नहीं मिल रहा है. सो नाउ इन प्रेडिकल लॉजिक वी कैन रिप्रेजेंट दिस फैक्ट्स एज मैन, सोक्रेटिस, प्लूटो. ठीक है, तो मैन, सोक्रेटिस, मैन, प्लूटो, ये क्या हो जाएगा? आपका प्रेडिकेट हो जाएगा. ठीक है, सो सिमिलरली मार्कस वाज अ मैन, मैन, मार्कस.
इस टाइप से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ये चीजों को, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा हम ध्यान दे रहे हैं। पहले हम उस क्रिया के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया था, अब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जब हम ध्यान दे रहे हैं तो क्या होगा, ये आपका प्रेडिकेट लॉजिक। फिर से देख लो, मार्कस वाज ए मैन, तो मैन मार्कस। विक्टर वाज ए गर्ल, गर्ल विक्टर। ठीक है, तो ये मैं एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ। विक्टर हो तो नहीं ना क्लास में? क्लास में हो विक्टर? सर। कोई बात- उसको मत बोल देना कि मैंने उसको आज गार्ड बना दिया, ठीक है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मार्कस वाज ए पॉम्पियन, तो पॉम्पियन मार्कस। सो क्वांटिफायर्स, आप ये दोनों समझ में आ गया, तो आपको ये समझ में आ गया प्रेडिकेट लॉजिक में हम कैसे लिखते हैं। अब आते हैं क्वांटिफायर। मैं पहले भी आपको बताता हूँ, अभी भी बोलता हूँ, देयर आर टू क्वांटिफायर्स। एक है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एक है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब वो सारे चीज जो सभी के लिए, means for x, it present phrase for all, something is true for all possible values of a variable, जैसे man is mortal, okay, और John loves everyone यहाँ पे एग्जांपल दिया हूँ। Similarly, John loves everyone को मैं कैसे लिख सकता हूँ? For all x loves John, x। और मैं man is mortal को कैसे लिख सकता हूँ? For all x mortal man and x। ठीक है, देन एग्जिस्ट, और ये आपको समझ में आ गया, यूनिवर्सल मतलब सबके लिए। अब एग्जिस्टेंशियल मतलब किसी किसी के लिए, ठीक है। यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फैक्ट दैट देयर एग्जिस्ट सम, ओके, सम पीपल लाइक रीडिंग एंड हेंस दे गेन सम गुड नॉलेज। ठीक है, ये थोड़ा टफ होता है अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे तो। सम पीपल लाइक रीडिंग एंड हेंस दे कैन गेन गुड नॉलेज। अब इसको मुझे प्रेडिकेट लॉजिक के जरिए इक्वेशन में बदलना है। कैसे करेंगे हम? some people, so there exists x, person x मतलब some people। conjunction like x reading मतलब क्या है? वो some people like reading, जो रीडिंग को लाइक करते हैं वो क्या कर सकते हैं? कुछ नॉलेज को गेन कर सकते हैं। गेन, there exists x, person x, conjunction likes x reading मतलब कुछ कुछ लोग जो है रीडिंग को लाइक करते हैं, दैट इम्प्लाइज गेन एक्स नॉलेज। वही एक्स मतलब वही लोग जो रीडिंग को लाइक करते हैं वो क्या कर सकते हैं? नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल देखो, लॉर्ड हैरिंग्स हैज ए क्राउन ऑन हिज हेड। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक्स, क्राउन एक्स, कंजंक्शन ऑन हैड, एक्स हैगिंग। क्राउन एक्स एक क्राउन है, ठीक है, कोई कोई तो क्राउन है, ठीक है। वो जो क्राउन है ये किसके सिर पे है आपका? ये है हगिंग्स। सो कंजंक्शन ऑन हेड एक्स, तो हैगिंग्स के ऑन हेड में क्या है? एक्स, और एक्स क्या है आपका? क्राउन। ठीक है, नाउ नेस्टेड क्वांटिफायर्स, ये थोड़ा ऐसा हो रहा है, इसको ये समझ में तो आ रहा होगा। नेस्टेड क्वांटिफायर्स मींस व्हाट? जहां हम फॉर ऑल और देयर एक्सिस्ट मतलब यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल दोनों को सेपरेटली यूज कर रहे हैं। ठीक है, एवरीबॉडी लव्स समबडी, एवरीबॉडी लव्स समबडी, इसको कैसे लिखेंगे? फॉर ऑल एक्स देयर एक्सिस्ट वाई, लव्स एक्स वाई मतलब फॉर ऑल एक्स सारे लोग, वाई नाम के कोई है, देयर एक्सिस्ट वाई, इसको लव्स करते हैं। ठीक है, फॉर ऑल एक्स देयर एक्सिस्ट वाई, लव्स। ठीक है, similarly every connection between for all x and there exists x, everyone dislikes garlic, for all x negation of likes x garlic, क्योंकि ये likes x garlic मतलब होता है सारे लोग जो है ना गार्लिक को लाइक करते हैं। आप निगेशन लगा दो कि सारे लोग, क्या हो जाएगा? निगेशन हो जाएगा, मतलब सारे लोग गार्लिक को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, so this can also be said as there does not exist someone who likes garlic, so negation of there exists x likes x garlic, ये दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। all Romans were either loyal to Caesar or hated him, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली दे देते हैं। तो फॉर all Romans,
तो फॉर ऑल एक्स आएगा. रोमन एक्स इंप्लाइज क्या होगा? लॉयल टू सीजर, सीजर और के कारण आ गया हेड एक्स और हेड एक्स सीजर. तो ऑल रोमन्स either loyal to Caesar or hate Caesar. Similarly, everyone belongs for all loyal to X. ठीक है. Similarly, इसको खुद कर सकते हो. There exists Y for all X loyal to X. It's the same है. Similarly, people only try to assassinate rulers they are not loyal to. उन सारे रूलर्स को assassinate करने की कोशिश करेंगे जो लॉयल नहीं होता है. For all X, for all Y, person X, for ruler X, and try assassinate X, Y. X ने Y को assassinate करने की कोशिश किया. कब? Implies negation of loyal to X. जो लॉयल नहीं है वो assassinate करेंगे. ठीक है. Then और एक एग्जांपल लेते हैं. All Pompeians were Roman. For all X Pompeian, X implies Roman X. Marcus tried to assassinate Caesar. To try assassinate Marcus and Caesar. ठीक है. और दो तीन एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा आ जाए समझ में. All indoor games are easy. For all X, indoor game X implies easy X. राजीव likes only cricket. तो यहाँ फोकस कर रहे हैं लाइक कौन? राजीव कमा cricket. So Rajiv likes cricket. Any person who is represented or respected by every person is the king. Okay, any person respected by every person. There exists for all Y, person X, person Y, conjunction, rest Y X. तो अगर X है कोई जिसको सारे लोग लाइक कर रहे हैं मतलब person Y लाइक कर रहा है मतलब रेस्पेक्ट कर रहा है तो वो क्या हो सकता है? एक किंग हो सकता है. ठीक है. So there exists X or all Y. X negation conjunction person Y conjunction rest king X. ठीक है. Similarly, who loves all animals is loved by someone. For all X, for all Y, animal Y implies loves X. It's very important and very easy also. Okay. तो ये वाला जो है ना, ठीक है, ये वाला तो आप लोग कर लोगे. मैं एक खुद देता हूँ, आप सभी लोग नोट डाउन कर लो और कमेंट के जरिए आप लोग बताओगे मुझे. ठीक है. उसको कन्वर्ट करोगे, you will convert that to what? An equation using predicate logic. Now write down that all सर students सर आप मैसेज करके व्हाट्सएप में दे देंगे ना सर who आपका. are regular हेलो. here will हाँ हेलो हेलो सर. हेलो हेलो सर. हेलो यस सर. राजेश बोल रहा हूँ सर. हेलो. write down all students who are not आपको सुनाई दे रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? सर वॉइस आवाज क्लियर टू कट रहा है एवरीवन? सर. ओके, मैं सर ये आवाज कट रहा है. वीडियो लेक्चर दे दूंगा, आप लोग उसको सुन के ये वाला कर लेना. ठीक है. all यस students सर. who are all yes हाँ मैं सुन सकता हूँ. आपको बोलिए. Yeah, I can hear you.
हाँ बोलिए बोलिए। Okay, I think some network problem is going on. I'm giving you the question and I'll give you the lecture, video lecture, then you will go through it and you will answer the question. Question is again, I'm repeating, all students who are regular and sincere will pass with distinction. हाँ हाँ, ये आपको हाँ, आपको ये वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, उसको लास्ट में जाके सुन भी लेना, तो ये मिल जाएगा, ठीक है? All persons who are, oh sorry, all students who are into equation using predicate logic.